नमस्कार, मैं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग नंबर 1 न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के मुख्य समाचार के प्रस्तुत करता है। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर ऑपोजिट सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. वैक्सीन की अनियमितता लगातार है जारी। जलपाईगुड़ी में पैसे देने के बावजूद भी रात भर लगनी पड़ रही है लाइन में। टीका लगवाने के लिए महिलाओं को हो रही है भारी परेशानी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने घोषणा कर रखी है कि जिन माओं के बच्चों की उम्र 12 वर्ष तक है उन सबको पहले टीका लगाया जाएगा। लेकिन देखा जा रहा है कि टीकाकरण को लेकर महिलाओं को भारी दिक्कतें और परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। जलपाईगुड़ी के बेलाकोबा ग्रामीण अस्पताल में महिलाओं को रात भर कतार में लगना पड़ रहा है, लेकिन पूरी रात और दिन भर लाइन में लगने के बावजूद टीका लगेगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। यह दृश्य सिर्फ जलपाईगुड़ी में ही नहीं बल्कि पूरे पश्चिम बंगाल में ही देखने को मिल रही है। महिलाएं अपने छोटे छोटे बच्चों को घर में रखकर पूरी रात लाइन में लगी रही, लेकिन सुबह में पता चला कि आज इनको टीका नहीं लगेगा। सबसे बड़ी बात है कि महिलाओं से 200 से लेकर 300 रुपये भी टीकाकरण के लिए लिया जा रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी उनको टीका नहीं मिल रहा है। बेलाकोबा ग्रामीण अस्पताल में लाइन में खड़ी महिलाओं ने बताया कि हम लोग से पैसे लिए जा रहे हैं और हम लोग रात भर लाइन में ही रहते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी टीका नहीं लगाया जा रहा। उन्होंने बताया कि स्वास्थ्य विभाग केंद्र के अधिकारियों द्वारा ये नहीं बताया जा रहा है कि कितने महिलाओं को टीका लगाया जाएगा और इसके लिए टोकन भी नहीं दिया जा रहा है। यही कारण है कि उनको भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। राज्य के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को इसकी तरफ ध्यान देने की ज़रूरत है। সদরের আন্ডারে যে বেলাকোবা গ্রামীণ হাসপাতালে মাদের 12 বছর পর্যন্ত সন্তানের মাদের হাসপাতালেই দেওয়া হচ্ছে। আমাদের প্রশাসনের কাছে দাবি, মানে সরকারের কাছে দাবি যেন স্বাস্থ্যকেন্দ্রে দেওয়া হয়, এই পোলিও সেন্টারে দেওয়া হয়। খুব হয়রানি, সেই রাত 4টার সময় উঠে এসে মানে রাখা, আর বাচ্চা তো ছোট, খুব সমস্যা হয়। পাবো নিশ্চিত নেই, কারণ এখানে দালাল চক্র চলছে। কীরকম, আমরা যখন ভোর 4টার সময় আইসে লাইনে দাঁড়াই তখন আমরা দেখি যে আমরা ছিলাম হচ্ছে 184 জনের পেছনে, কিন্তু এখন জানি না কি হলো, দালাল চক্রের একটা কিছু ব্যাপার আছে। এখন দেখি আমরা প্রায় 250 জনের পিছনে। মাঝে কী করে লোক ঢুকছে ওটা বুঝতে পারছি না। প্রশাসনের কাছে দাবি, সরকারের কাছে দাবি যে সেন্টারগুলোতে দেওয়া হয়। বাচ্চা থাকতেছে না, এইভাবে কি আর কতক্ষণ আর থাকবো এইভাবে? হ্যাঁ, অনেক দূর থেকে লাইন হচ্ছে এখানে ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য। অনেক দূর থেকে আসি ভ্যাকসিন নেওয়ার জন্য। এখন যদি এইভাবে ঘুরে যাই তাহলে কি হবে? কি চলবে? আমরা 3টার দিকে আসছি রাত্রে। এখান থেকে তো কিছুই বলতেছে না। যখন থেকে আসতেছি তখন থেকে তো হিসাব নিতেই চলতেছে, আর কিংবা গুনতেই যাচ্ছে, যে বলতেছে যে 200 জনের নেবেই না, এইভাবেই বলছে। আমরা তখন আসি তখন নিয়ে যাবো, 200 জনই হোক বা 200 জনের কম হোক বা বেশি হোক, আমরা নিয়ে আসি যখন নিয়ে যাবো। আসি কতক্ষণ থাকবো আর এখানে? এত গরমের মধ্যে থাকাও যাচ্ছে না, না কোনো টোকন দেওয়া হচ্ছে না, লাইনেই দাঁড়িয়ে আছে। আমরা এখন ভ্যাকসিন নিয়ে যাব, আমরা এটাই বলবো। আমরা আমাদেরকে স্থানীয় পুলিশ সেন্টার থেকে ওখান থেকে আসি, ওখান থেকে আমাদেরকে পাঠাইছি, ওখান থেকে আসি আমরা। ওখানে দেওয়া আমাদের হচ্ছে না। ওখানে যদি পোলিও সেন্টার থেকে যদি দেওয়া হতো তাহলে তো সুবিধাই হতো। এখন যদি ওখানে যদি না দেয় তাহলে আমরা কি আর কি বলবো? আর আমরা তো বলতেইছি। প্রথম কথা তো আমাদের মায়েদের দেওয়া হচ্ছে 12 বছর যাদের হচ্ছে শিশু আছেন তাদের মায়েদের দেওয়া হচ্ছে। এই দেখে আপনারা সবাই জানেন যে থার্ড ওয়েভ আমাদের জাস্ট কামিং, মানে চলে আসছে। এই সিচুয়েশন দেখে তাদের মায়েদের উপর জোর দেওয়া হচ্ছে তাদের মায়েদের দেওয়ার জন্য। দ্বিতীয় ব্যাপার, এই মারামারি লাইন সংক্রান্ত যেই সব বিষয় আছে সেই সব বিষয় নিয়ে আমরা পুলিশ প্রশাসনের সাথে কথা বলছি, তাদের সাথে কোঅপারেশনে যতটা করা যায় ততটা করছি, ঠিক আছে। তো এবার মাঝে মধ্যে কয়েকটা ইস্যু হতেই পারে, এতজনের ভ্যাকসিনেশন, এত মাসের ভ্যাকসিনেশন, এত ইস্যু মাঝে মধ্যে যা হচ্ছে আমরা দেখছি। কুপন যেটা সিস্টেম চলছিল আগে, ঠিক আছে, সেটা মানে যখন 100 বা 150 একটা লিমিট অবধি যখন ছিল তখন কুপন দেওয়া ছিল।
যখনই আমরা দেখছি যে এই এত 300 জনের এত মাস ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে, 300 500 এত জনের যখনই ভ্যাকসিনেশন হচ্ছে, তখন কুপন সিস্টেম তৈরি করলে আরও বেশি আমাদের অসুবিধা হচ্ছে, ভ্যাকসিনটা দিতে আমাদের অসুবিধা হচ্ছে। প্লাস কুপনের সময় এই ইয়ের সময় কী হচ্ছে, অনেকে পাথর দিয়ে লাইন দিচ্ছে, এইসব করে মানে আমাদেরই অসুবিধা হচ্ছিল বিবিধ, মানে এই অসুবিধার জন্য আমরা সেটাকে বন্ধ করেছি, আপাতত বন্ধ আছে। কিন্তু দেখা যাক, যেহেতু আমাদের দিন দিন যাবে, সময় সময় যাবে, যেটা আমাদের ঠিক মনে হবে ওরকম করে আমরা স্টেপ নেব। विधायक शंकर घोष ने पानी की बर्बादी रोकने के लिए उठाया अद्भुत कदम। सिलीगुड़ी के विधायक शंकर घोष ने पानी की बर्बादी रोकने की दिशा में पहल करते हुए गुरुवार को सिलीगुड़ी के झंकार मोड़ से सटे इलाके में बिना टोटी वाले टाइम कॉल में टोटी लगाई। इस अवसर पर विधायक शंकर घोष ने कहा कि आने वाले दिनों में पूरे नगर निगम में इस तरह का कार्यक्रम चलाया जाएगा और यहां संदेश दिया जाएगा कि किसी को भी इस तरह पानी का नुकसान नहीं करना चाहिए। इसके साथ ही उन्होंने सिलीगुड़ी नगर निगम के प्रशासनिक बोर्ड को भी गंभीरतापूर्वक कदम उठाने का आग्रह किया। কর্মসূচি তো আমরা অনেকেই অনেক কিছু করি, সমস্যা হচ্ছে এই কর্মসূচিগুলোকে সঠিকভাবে পালন করা এবং সেটাকে রক্ষা করা, এটা খুব দরকার। এই যে জলের অপচয়, আমার ধারণা প্রায় 72 মিলিয়ন লিটার পার ডে আমাদের জলের প্রয়োজন আজকের দিনে দাঁড়িয়ে। আমার জল উৎপাদন হয় প্রায় 50 মিলিয়ন লিটার বা তার কাছাকাছি পার ডে। তাহলে সরাসরি আমাদের প্রায় 20-21 মিলিয়ন লিটার পার ডে জলের অভাব আছে আমাদের শিলিগুড়ি শহরে। যে এখনই আমরা এখানটা দেখছিলাম, আপনারা দেখছিলেন, নিজের মতন জল পড়ে যাচ্ছে। কোনো জায়গায় এই বিশেষ করে স্ট্যান্ড পোস্টে এত জল অপচয় হয়। আমি নিজের পাড়ায় আমি দেখেছিলাম যে যতক্ষণ জল পড়ে হয়তো 3 জন মাত্র আসলো আর বাদবাকি সময়টা শুধু জলই পড়ে গেল। আমরাও উদ্যোগ নিই যে স্টপ কপগুলো লাগিয়ে জলটাকে আটকানো। দু ধরনের সমস্যা হয়, এক লাগানো তো হলো খুব ভালো কথা, 2 দিন পরে দেখা যাবে যেখান থেকে এটাকে কেউ খুলে নিয়ে গিয়ে মানে বিক্রি টিক্রিও করা যায় না, কেউ জানি না, বিক্রি করে দেয়। सड़क हादसे में मोटरसाइकिल चालक की मौत। अलीपुरद्वार जिले के जयगांव भूलन चौपाटी इलाके में सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई। मृतक की शिनाख्त मंगलाबाड़ी क्षेत्र निवासी पूर्ण विश्वकर्मा के रूप में हुई है। कल रात वह मोटरसाइकिल से घर लौट रहा था। चौपाटी इलाके में भूलन क्षेत्र में मोटरसाइकिल अनियंत्रित होकर दुर्घटनाग्रस्त हो गई। घटना के बाद स्थानीय लोगों ने घायल अवस्था में उन्हें लाताबाड़ी अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया। कालचिनी पुलिस ने बीती रात शव को बरामद किया। पुलिस के मुताबिक आज शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। इस बीच पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है। हम लोग तो नहीं देखा है अभी तक। हाँ, और पुलिस लोग आया था, उसमें उन लोग बैठा था, हम लोग भी आ गया तो फिर मेरा लड़का देखा। नहीं, घर से तो अभी दिन में अभी 3-4 बजे निकला, 3 बजे तक। हाँ, बाइक में निकला के पैदल निकला के अब इधर बलंग टर्निंग में तो बाइक में गिर गया। आज केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगी ममता बनर्जी। शरद पवार, संजय राउत, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिलेंगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के 5 दिवसीय दिल्ली दौरा का आज चौथा दिन है। पीएम मोदी सोनिया गांधी, राहुल गांधी, अरविंद केजरीवाल से मुलाकात के बाद आज ममता बनर्जी केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात करेंगे। इसके अलावा अपने दिल्ली दौरे के चौथे दिन शरद पवार, संजय राउत, जावेद अख्तर और शबाना आजमी से भी मिल सकती है। एक दिन पहले ममता ने कांग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी और राहुल गांधी से मुलाकात कर देश के मौजूदा राजनीतिक हालातों पर चर्चा की थी। दिल्ली में हुई इस मुलाकात के दौरान पेगासस जासूसी मामले पर भी चर्चा की गई। ममता बनर्जी ने कहा कि सोनिया गांधी विपक्ष की एकजुटता चाहती है। ममता ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर कहा कि हमारे लिए जनता ही चेहरा है, लोकतंत्र बचाने के लिए चेहरा भी आ जाएगा। 2024 में विपक्ष के चेहरे के भविष्य पर ममता बनर्जी ने ये बातें कही। जब उनसे पूछा गया कि पश्चिम बंगाल के बाहर देश भर में भी खेला होगा, तो उन्होंने कहा कि हाँ, देश में भी खेला होगा।
विपक्षी एकजुटता को लेकर भाजपा नेता सांतन बासु का कटाक्ष, कहा कई लोग प्रधानमंत्री का ख्वाब देख रहे, 2019 में नहीं हुआ, 2024 में भी नहीं होगा। भाजपा के प्रदेश महासचिव सांतन बासु गुरुवार को सुबह कोलकाता लौटते समय मालदा शहर के झालझालिया इलाके में चाय पे चर्चा कार्यक्रम में शामिल हुए। उनके साथ भाजपा महिला मोर्चा की अध्यक्षा सुतापा मुखर्जी, भाजपा नेता अमलान बादुड़ी और अन्य जिला नेता भी उपस्थित थे। इस अवसर पर पार्टी की ओर से कोविड नियमों का पालन करने के लिए लोगों को मास्क बांटा गया। कार्यक्रम के दौरान सांतन बासु ने संवाददाताओं से कहा कि आजकल कई लोग प्रधानमंत्री बनने का सपना देख रहे हैं। भाजपा को हराने के लिए सभी विपक्षी दल एकजुट हो रहे हैं और इससे कोई लाभ नहीं होगा। पश्चिम बंगाल के बाहर तृणमूल कांग्रेस को लोग नहीं जानते हैं। 2019 में प्रयास किया गया पर ऐसा कुछ नहीं हुआ, 2024 में भी ऐसा कुछ नहीं होगा। প্রধানমন্ত্রী হওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী হওয়ার বাসনায় এখন নানা রকম ঐক্যের কথা আপনারা শুনবেন। বিরোধী ঐক্য, সম মনোভাব সম্পন্ন দলের ঐক্য, বিজেপিকে ঠেকাতে ঐক্য, সবাই প্রধানমন্ত্রী হতে চায়, তাহলে আর সেখানে ঐক্য হবে কোথা থেকে? এই মহত্ব আকাঙ্ক্ষা, প্রধানমন্ত্রী হওয়ার স্বপ্ন দেখতে পারেন, তাতে কোনো অসুবিধা নেই, কিন্তু বাস্তবটা অনেক আলাদা। তো সহজে স্বপ্ন দেখলেই আর ডাক দিলেই প্রধানমন্ত্রী হওয়া যায় এমন যেতে পারে ত্রিপুরাতে। তৃণমূল কংগ্রেসের অস্তিত্ব পশ্চিমবঙ্গের বাইরে কোথাও নেই। সে ত্রিপুরা বলুন, আসাম বলুন, গুজরাট বলুন, মধ্যপ্রদেশ বলুন, তৃণমূল কংগ্রেসের নামই বহু মানুষ শোনেনি এসব জায়গায়। ত্রিপুরার গ্রামের বাঙালি মানুষকে জিজ্ঞাসা করুন তৃণমূল কংগ্রেস নামে কোনো দলের অস্তিত্ব তারা জানে কিনা, তারা বলবে আমরা জানি না। अब लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। कक्षा 10वीं और 12वीं के बच्चों के लिए है सुनहरा मौका। 10वीं के बच्चों के लिए है पैरामेडिकल कोर्स और 12वीं के लिए है मेडिकल कोर्स। किफायती फीस और बैंक की सुविधा के साथ विभिन्न डिग्री डिप्लोमा है उपलब्ध। सभी स्ट्रीम के बच्चों के लिए खुली है AICTE, KNC, INC, PCI द्वारा अनुमोदित भारत सरकार और राज्य संकाय बेंगलोर विश्वविद्यालय के तहत PCI नई दिल्ली ISO 9001-2008 से प्रमाणित। अदन पैरामेडिकल एंड नर्सिंग कॉलेज, कॉन्टैक्ट नंबर 8016235569, चंपासारी, सिलीगुड़ी। सिक्किम मणिपाल यूनिवर्सिटी से संबद्ध सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी के अंतर्गत संचालित BPT एवं MPT पाठ्यक्रम विषयों में प्रवेश लेने वाले छात्रों को सूचित किया जाता है कि वे अपना आवेदन पत्र सिक्किम मणिपाल कॉलेज ऑफ फिजियोथेरेपी में जमा कर सकते हैं। योग्यता के आधार पर स्कॉलरशिप भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी के लिए कृपया smu.edu.in पर लॉग ऑन करें। Are you in an emotional pain? Do you feel overwhelmed and panic? If you are suffering from any of such problems, then your worry ends here. Let's Heal, promoting healed and empowered life, is here to empower you all the necessary tools and strategies to lead a happy and a contented life. Contact us at Let's Heal Consulting. Contact number 8369197180. Address City Centre Mall, Block G. Office number 426, Siliguri. दवाइयों से छुटकारा, अल्कलाइन पानी का सहारा। पहले 100 कस्टमर को मिलेगा 20 लीटर का जार, कोविड पैकिंग के साथ मात्र 125 रुपए प्रति जार, वह भी 2 साल तक। ऑफर के बाद वाले कस्टमर को मिलेगा 200 रुपए प्रति जार। अल्कलाइन के फायदे: डायबिटिक, एसिडिटी, कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड प्रेशर, वेट लॉस, गिव्स एक्स्ट्रा स्ट्रेंथ टू आवर लंग्स। तो इंतजार किस बात का, आज ही बुकिंग करें। टोल फ्री नंबर 180057298851। अब वक्त आ गया है अपने सपनों को एक नई पहचान देने का। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर आपके लिए लेके आए हैं डिप्लोमा एंड कोर्सेज जैसे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स, सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, टैली, जावा, HTML, DTP, C++, पाइथन जैसे बहुत से कोर्सेज एंड डिप्लोमा। और आपको मिलेगा होलोग्राम सील्ड सर्टिफिकेट गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल अंडरटेकिंग, जो आपके हर सपने को देगा एक नई उड़ान। वेबल कंप्यूटर ट्रेनिंग सेंटर, ऑपोजिट
सिलीगुड़ी कॉलेज, गेट नंबर 2, कॉलेज पाड़ा, सिलीगुड़ी। Are you dreaming to wake up under the calming Turkish skies? Make it a reality and bring home the Turkish collection from Royal Oak. Just a click away. International furniture, unbeatable price. Visit a Royal Oak store today. 50 से 70% कम कीमतों पर ऑर्किड बिल्डिंग ऑपोजिट वेघा सर्कल, 2.5 माइल, सेवक रोड, सिलीगुड़ी। सोचा था उत्तर बंगाल और सिक्किम का एक टेलीविजन चैनल हो। हर्ष होता है आज उत्तर बंगाल के पहाड़, दार्जिलिंग जिला या कालिम्पोंग या फिर हो सिक्किम, हर जगह हर ग्राउंड चैनल हैथवे, सीसीएन या एनएक्सटी डिजिटल हर सेटअप बॉक्स पर अपना 24 घंटा चैनल चल रहा है। मूल मंत्र बढ़ाने का व्यापार, पहाड़ के कस्टमर से प्यार। इस्लामपुर से लेके जलपाईगुड़ी साथ ही सिलीगुड़ी में भी हैथवे और सिटी केबल में 24 घंटा चैनल, फेसबुक और यूट्यूब में भी है। जब एसके लाइव का हो साथ तो चिंता की क्या बात। एडवर्टाइज योर प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज विद एसके लाइव। ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। शुरू करते हैं खबरें। मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत। जज ने कहा, फिल्मी डायलॉग से नहीं फैलती हिंसा। ममता बनर्जी की पार्टी तृणमूल कांग्रेस छोड़कर भारतीय जनता पार्टी में शामिल होने वाले अभिनेता मिथुन चक्रवर्ती को कलकत्ता हाईकोर्ट ने बुधवार को बड़ी राहत दी। जज ने कहा कि किसी फिल्म के डायलॉग से हिंसा नहीं फैलती, ना ही अशांति होती है। मिथुन चक्रवर्ती के मामले में हाईकोर्ट ने कोलकाता पुलिस से जांच की रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा है। जनसभा में भाजपा का दामन थामने वाले बॉलीवुड के स्टार और डांस के महागुरु मिथुन चक्रवर्ती ने अपनी फिल्म के 1-2 डायलॉग बोले थे। मारबो एखोने लाश पोड़बे शमशाने, यानी मारूंगा यहां तो लाश गिरेगा शमशान में। मिथुन के इस डायलॉग को तृणमूल कांग्रेस ने भड़काऊ बयान करार दिया था और प्राथमिकी दर्ज कराई गई थी। स्कूल खोलने की मांग को लेकर निखिल बंग प्राथमिक शिक्षक समिति ने डीएम को सौंपा ज्ञापन। निखिल बंग प्राथमिक शिक्षक समिति ने कोविड स्वस्थ नियमों का पालन करते हुए प्राथमिक विद्यालयों को खोलने की मांग की है। इस मांग को लेकर संगठन की ओर से बुधवार को जलपाईगुड़ी जिला शासक को एक ज्ञापन सौंपा गया। समिति के सचिव वल्लभ झा ने कहा कि कोविड के बारे में विशेषज्ञों से विचार विमर्श कर सप्ताह में 1 या 2 दिन स्कूल खोलने की मांग जिला प्रशासन से की गई है। साथ ही उन्होंने कहा कि समिति की ओर से तूफान से क्षतिग्रस्त स्कूल की मरम्मति एवं अभिभावकों को वैक्सीन दिए जाने की मांग की गई है। एबीपीटीए निखिल बंग प्राथमिक शिक्षक समिति जलपाईगुड़ी जिला कमिटिर पक्ष থেকে আজকে মাননীয় জেলা শাসকের কাছে এসেছি কিছু নির্দিষ্ট বিষয় তার সামনে উল্লেখ করার জন্য। আমাদের প্রধান দাবি হচ্ছে যে অবিলম্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খুলতে হবে। যদি একবারে খোলা না যায় তাহলে ধাপে ধাপে অন্তত সপ্তাহে 1 দিন 2 দিন যাতে বিদ্যালয়গুলো এক একটা ক্লাস খোলা যায় তার ব্যবস্থা করার জন্য কোভিড বিধি মেনে বিশেষজ্ঞদের সাথে কথা বলে শিক্ষাবিদ এবং শিক্ষক সংগঠনগুলোর সাথে আলোচনা করে বিদ্যালয়গুলো খোলা খুবই জরুরি এবং সেই কারণে আমরা এই দাবি জানাতে এসেছি বিদ্যালয়গুলো খোলা হোক। দ্বিতীয়ত হচ্ছে রক্ষণাবেক্ষণের অভাবে 1 মাস একটা বাড়ি বন্ধ থাকলেই সেই বাড়িটার হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের ক্ষতি হয়ে যায় এবং দীর্ঘ প্রায় 1.5 বছরের অধিক সময় বিদ্যালয়গুলো বন্ধ আছে। তার ফলে হচ্ছে চেয়ার টেবিল ইলেকট্রিক গুডস ঘর সমস্ত ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। আমরা বলেছি যে জেলা প্রশাসন পৌরসভা ব্লক প্রশাসন মহকুমা প্রশাসনের উদ্যোগে 100 দিনের কাজ চলছে তাদেরকে ব্যবহার করে যাতে হচ্ছে যে এই যে জায়গাগুলো এই যে সম্পত্তিগুলো সরকারি সম্পত্তিগুলো সেগুলো যাতে রক্ষণাবেক্ষণ করা যায় স্যানিটাইজ করা যায় ক্লিনিং করা যায় সেটার জন্য আমরা দাবি জানিয়েছি। এই কিছুদিন আগে ঝড় এবং প্রাকৃতিক কারণে বেশ কিছু স্কুল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে যে স্কুলগুলো রিপেয়ার করা খুব জরুরি। আজকে যদি স্কুল খোলার ঘোষণাও হয় সেই স্কুলগুলোতে যা পরিস্থিতি তাতে সেখানে ক্লাস করার মতন উপযুক্ত পরিবেশ থাকবে না। আমরা সেই দাবি জানাতে এসেছি। আমরা জানাতে এসেছি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীদের অভিভাবক অভিভাবিকাদের অবিলম্বে প্রাথমিক বিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে যাতে তাদের হচ্ছে ভ্যাকসিনেশন করানো যায় এবং মূল্যায়নের যে কাজ যে অ্যাক্টিভিটি টাস্ক দেওয়া হচ্ছে আমরা বলেছি ধারাবাহিকভাবে এই অ্যাক্টিভিটি টাস্ক দিয়ে যেতে হবে প্রত্যেক মাসে শিক্ষা দপ্তরের পক্ষ থেকে এবং তার সাথে দাঁড়িয়ে আমরা যেটা বলেছি बैंक डूबने पर भी 3 महीने के अंदर मिलेगा आपका पैसा। 5 लाख रुपए तक की गारंटी दे रही है सरकार। पीएमसी यानी पंजाब एंड महाराष्ट्र कोऑपरेटिव बैंक, लक्ष्मी विलास बैंक, यस बैंक और कई अन्य सहकारी बैंकों के ग्राहक आज भी अपने पैसे के लिए परेशान है। बैंकों के डूबने की स्थिति में निवेशकों को पैसा डूब जाने का खतरा बना रहता है, लेकिन भविष्य में ऐसी स्थिति में बैंक डिपॉजिटर्स को
कोई परेशानी नहीं होगी। बैंक डूब जाने पर भी उन्हें 3 महीने के अंदर उनका पैसा वापस मिल जाएगा। केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को हुई बैठक में इस संबंध में बड़ा फैसला देते हुए DICGC एक्ट में बदलाव को मंजूरी दे दी। संसद के मौजूदा सत्र में ही इस बिल को सदन में रखा जाएगा। इस बिल के पास होते ही कानून में हुए बदलाव को मान्यता मिल जाएगी और बैंक ग्राहकों को भविष्य में टेंशन लेने की जरूरत नहीं होगी। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के 1 साल होने पर प्रधानमंत्री करेंगे शिक्षा सुधार के कई अभियानों की शुरुआत। पीएम नरेंद्र मोदी नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के 1 साल पूरे होने के अवसर पर आज 29 जुलाई 2021 को राष्ट्र को संबोधित करेंगे। प्रधानमंत्री ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से देश को NEP 2020 में अब तक के क्रियान्वयन और किए जा रहे सुधारों की जानकारी देंगे और साथ ही NEP के लक्ष्यों को पूरा करने के लिए जरूरी विभिन्न अभियानों की आधिकारिक रूप से शुरुआत भी करेंगे। प्रधानमंत्री के संबोधन को आज 4:30 बजे किया जाएगा। आज NEP के तहत परिवर्तनकारी सुधारों के 1 वर्ष पूरे होने के अवसर पर पीएम मोदी की कई अभियानों की भी शुरुआत करेंगे जो नई शिक्षा नीति के तहत परिकल्पित कई लक्ष्यों को साकार करने में महत्वपूर्ण मील का पत्थर साबित होगा। अपने संबोधन के माध्यम से पीएम देश का मार्गदर्शन भी करेंगे। क्या देश में दस्तक दे चुकी है कोरोना की तीसरी लहर? ठीक होने वाले मरीजों की संख्या घटी, 24 घंटों में सामने आए 43,509 नए मरीज। कोरोना महामारी की तीसरी लहर की आशंका के बीच देश में एक बार फिर संक्रमण के मामले तेजी से बढ़ने लगे हैं। पिछले 24 घंटों में 43,509 कोरोना के नए मामले सामने आए और 38,465 मरीजों ने कोरोना वायरस को मात दी। चिंता की बात यह है कि नए मामलों की तुलना में ठीक होने वाले मरीजों की संख्या फिर से घटने लगी है। इसके साथ ही देश में एक्टिव केसेस की संख्या बढ़कर 4,03,840 पहुंच चुकी है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार यह जानकारी दी गई है। कोरोना महामारी की आशंका के बीच केरल में तेजी से संक्रमण के मामलों में इजाफा हो रहा है। कोरोना संक्रमण पर काबू पाने के लिए केरल सरकार ने 31 जुलाई और 1 अगस्त को राज्य में संपूर्ण लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। आज के लिए बस इतना ही और खबरों के लिए देखते रहिए SK लाइव। आपका समय आपकी खबर। धन्यवाद।